Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another video. Mission 9 July 2020. As you know, CBC has announced its reschedule for its pending examination and 9 July is decided for business studies. So in this video, I have covered all the very important topics from all 12 chapter of business studies, so that for proper preparation of your board examination. So without any further time, let's move on today's video. So from the first chapter, that is nature and significance of management, here I'm going to give you few topics as a suggestion that you should go through for preparation point of view. The first topic is effectiveness and efficiency with example. यहाँ सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि examples you have to prepare, because in each examination we can observe that कि examples case study and indirect questions आते ही रहते हैं, and for cracking those indirect and case study question you should have the knowledge of examples of these two terms, effectiveness and efficiency. Then next one is characteristics of management, a very basic point and always used to come in examination. Then importance of management, functions of all the levels of management, that is top level, middle level and lower level. You have to remember all the functions that is performed at all the three levels of management. Then name of post on each level of management, like supervisor come under which on which level, then managers come under which level, then CEO come under which level, as on. Okay, so you have to remember few name of the post which are covered on each level of management. Then coordination, and two basic points you have to cover, that coordination is the essence of management and the features of coordination. So this is all from chapter number first. Then chapter number 2, principles of management. The first point is 14 principles given by Henry Fayol, and you will find a link in the description box regarding the video on these principles I have made in my previous videos. So kindly go through that video. You will find very simple trick to recall all the 14 principles with the effective and enjoying way of learning. Okay, so the first point is you have to go through all the 14 principles. You cannot skip any principle suggested by Henry Fayol. And what you have to learn in this, that is concept with example, and then positive and violating effects. Okay, you have to go through the examples. You make it sure that you should have the knowledge of example, because it will again help you to crack the indirect and case study question, to recognize which principle is applied or which principle is violated in the given case. So you have to prepare the examples and as well as positive and violating effects, okay, along with the concept definitely. Then second is scientific principles of management given by F.W. Taylor. These are 4 in numbers. Then there are a lot of techniques given by F.W. Taylor's, but you should go through at least these techniques. Functional foreman, very important. Okay, 8 experts suggested by F.W. Taylor. Then differential wage system, and again with the help of numerical. न्यूमेरिकल इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि इसमें एक बार एग्जामिनेशन में हो चुका है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, and again you can expect a numerical case given in the question to identify which technique is cited in the case. So you have to prepare a numerical example for differential wage system. Then work study के अंदर 4 आते हैं, you know well. T refers to T for time study. Then M, 2 M's are there, M1, M2, method study, motion study, and then F refers to fatigue. Okay, so मैंने वहां पर short form लिखे हुए हैं, you have to prepare in detail. Then comparative study of contribution by both the experts, that is Fayol and Taylor. Okay, दोनों के comparative studies book में आपको दिए गए हैं, and उसको आप prepare कर लीजिए. And we are having ample time, around 50 days we are having to prepare all these
topics. Okay, so you should go through all these points very in detail, and for the help of preparation I am making a lot of video for you. Please like and subscribe the channel and go through all the videos which will help you definitely for preparation of these topics. So now from the third chapter, that is business environment, you should go through features of business environment, then importance of business environment, then all the 5 dimensions of business environment. 5 dimensions आप जानते हो, which is also known as the macro environment of business. And again उसके अंडर क्या क्या करना है आपको. So concept of all the dimensions, then elements और factors जो उसमें include होते हैं, then examples, and again example. Wherever I have written example, that means it is a very vital part of that concept, because that will help you to crack the indirect or case study question. Then impact of changes in economic policy on business and industry. आपको याद होगा, आपने इस चैप्टर में LPG पढ़ा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उन्हीं सबको आपको इसमें प्रिपेयर करना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर, प्लानिंग. फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. ओके, ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू कवर. प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान. ध्यान रखने वाली बात, जनरली बच्चे इसी को प्रिपेयर करते हैं 2 तरह से. One is standing and other is single use, but a third one is also there, neither single use nor standing plan. So I have written all the shortcut names, and मैं अभी full form ही बता दे रहा हूँ सभी का. So the first one is neither single use nor standing plan. इसमें 2 आते हैं, objective and strategy. Then the next one is standing plan. उसके अंदर आते हैं 4. फर्स्ट वन इज मैथड, सेकंड P, 2 P है यहाँ पर, P1 P2 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. वन इज P, पॉलिसी, एंड सेकंड इज पॉलिसी, देन उसके बाद प्रोसीजर, एंड R फॉर रूल. सो स्टैंडिंग प्लान के अंदर 4 आ गए. उसके बाद आता है सिंगल यूज प्लान, which is also known as ad hoc plan, under which 2 points are there, 2 types of plan are there, budget and program. Okay, so in this way you have to prepare. Then it's turn to 5th chapter, organizing. First point is organizing process and importance of organizing. Then organizational structure, and 2 structures are there, functional organizational structure and divisional organizational structure. And जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मैं एग्जांपल यहीं पर आपको दे देता हूं. व्हेनेवर अ फर्म और अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट, इट इज अ केस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, रिमेंबर दैट थिंग. देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने होंगे, एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स एलिमेंट्स. Then decentralization and difference between delegation of authority and decentralization. बहुत सिमिलर लगते हैं, इसलिए इसके ऊपर केस भी आते हैं और डिफरेंशिएशन भी आते रहते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट चैप्टर 6, दैट इज स्टाफिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. देन स्टाफिंग प्रोसेस, विच इज वर्कफोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस. देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Then common methods of external recruitment, which is always used to ask in the examination either directly or indirectly. Then selection process. Then concept of training and development and its benefit to employee and organization or employer. इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस ना सिर्फ बिजनेस के लिए है, बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ नहीं है, बिजनेस के लिए भी होता है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द point of view. Then methods of training with suitable examples. So there are a lot of method. You have to go through all the methods and again try to prepare it with the help of examples. That will help you to crack the case study and indirect questions. Now chapter number 7, directing, meaning and importance of directing. Motivation, डायरेक्टिंग की एलिमेंट के तौर पर मोटिवेशन है, एंड अ सिंपल मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज दैट स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग. तो मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, उसके मीनिंग के तौर पर यू हैव टू रिमेंबर, सो दैट यू विल मेक इट मेमोरेबल, है ना. देन थर्ड इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विद एग्जांपल्स.
लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, जिसकी मीनिंग है मैंने शॉर्ट में लिख दी है कि लीडरशिप क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क. देन लीडरशिप स्टाइल्स विद एग्जाम्पल्स, अगेन एग्जाम्पल लिखा है मैंने, दैट मीन्स अगेन कि ये बहुत वाइटल पार्ट है. एंड 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप इज स्टाइल्स आर देयर. वन इज ए फॉर ऑटोक्रेटिक, देन डी फॉर डेमोक्रेटिक एंड एल फॉर लेजियस है ना. तो ये आपने पढ़ा हुआ है. देन कंटिन्यू. कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड प्रोसेस. देन evaluation of formal and informal communication. Evaluation refers to 2 points. One is merit and second one is demerits. Okay, so you have to prepare merits and demerits of both formal and informal communication. Then barriers to effective communication, और barriers में 4 कैटेगरी हैं, and again I have written in short form: semantic barrier, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स. सो अगेन इसमें आप लोगों को प्रिपेयर अच्छे से करना, बिकॉज ये भी एग्जामिनेशन में इनडायरेक्ट वे में जनरली आता है. देन मैस्लोज नीड हायरार्चिकल थ्योरी विथ एग्जाम्पल एंड क्रिटिसिज्म. हाउएवर ये क्रिटिसिज्म बहुत रेयर है, बट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल एग्जामिनेशन में आ सकता है. एंड मैस्लो के जो लेवल बाय लेवल नीड हायरार्ची बनाया गया है उसको आप जरूर याद करिए, पिरामिड को, एंड उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन को विथ एग्जाम्पल. अगेन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हर एक नीड के, आपको उसको प्रिपेयर करना होगा. देन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग, meaning comparison of actual performance with standard performance. So it is a short meaning which I have written. Then importance of controlling. Then relationship between planning and controlling, 2 parts में divided है, similarities and एक दूसरे पर टिका होता है, then एक दूसरे से क्या relations है उनके. Then controlling process, very important. Then critical point control and management by exception. ये जो लास्ट का मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ये 3 मार्क्स के लिए अक्सर एग्जाम में आता रहता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. देन चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अंडर पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर, जिसको हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. देन 3 फाइनेंशियल डिसीजन, जिसके अंदर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. एंड इनकी मीनिंग को प्रिपेयर करने के साथ साथ यू हैव टू प्रिपेयर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दीज फाइनेंशियल डिसीजन. A lot of factors are there in this chapter, and you can see one of the factor in your board examination from this chapter. So जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तो यही डिसीजंस हो गए, इनमें तीनों में फैक्टर्स अफेक्टिंग है, तो बहुत चांसेस है कि इनमें से किसी एक का फैक्टर अफेक्टिंग बिल्कुल आ सकता है. ओके. देन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. अगेन एक फैक्टर अफेक्टिंग आ गया है, फिक्स्ड कैपिटल का और वर्किंग कैपिटल का. तो राइट नाउ वी हैव टेकन दैट फैक्टर्स आर देयर फॉर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन एंड फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो इनमें से कोई भी ऐसा जरूर है जो एग्जामिनेशन में पक्का आएगा ही आएगा, दैट्स फॉर श्योर. देन चैप्टर नंबर 10, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स डेल्ट इन मनी मार्केट. अक्सर एग्जामिनेशन में 1 नंबर के भी लिए आ जाता है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में डील किया जाता है, या फिर एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या पहचानने के लिए दिया जाता है. देन इंस्ट्रूमेंट्स डील्ड इन कैपिटल मार्केट. देन डिफरेंस बिटवीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के अंदर, एंड देन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. यू नो दैट सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. देन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. देन अगेन अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेबी, ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके 3 फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस. सो इन सभी को वेल प्रिपेयर करना होगा आपको. देन चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अ बिग चैप्टर, अ ह्यूज चैप्टर एंड कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड जिस पर आप लोगों ने होप सो के प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर किया. द फर्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज. 5 फिलोसफीज बताए गए हैं, उन सभी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वेल प्रिपेयर करिए आप. देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देन इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ओके, होप सो कि आप लोगों ने फाइल में इसको प्रैक्टिकली बनाया है एंड आपको उसी से काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो गया होगा. देन
टाइप्स ऑफ पैकेजिंग विथ एग्जाम्पल. अगेन एग्जाम्पल्स लिखने के पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि सो दैट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, बिकॉज एग्जामिनेशन में इनडायरेक्टली दे दिया जा सकता है कि लाइक कोलगेट का जो कार्डबोर्ड होता है वो कौन सा पैकेजिंग है. कार्डबोर्ड, ठीक है, ध्यान से रखिएगा क्योंकि ट्यूब अलग होता है, कार्डबोर्ड अलग होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग. फर्स्ट इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंड इज सेकेंडरी पैकेजिंग एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. सबकी मीनिंग बहुत सिंपल सी है. मैं इस वीडियो में वो सब कुछ नहीं बता सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी. देन नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल fixing the price of a commodity or service. A very important point from this chapter again. बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो कि ये आ सकता है एग्जामिनेशन में कि कैसे किसी का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है. सो व्हाट फैक्टर वी शुड kept in mind while deciding the price of a commodity or good. Then continuation में components of physical distribution, then advertising, advantages and disadvantages. ज़्यादा important है इसमें से disadvantages. Next one is sales promotion, merits and demerits, then personal selling importance to businessmen and customers, then public relation ways or methods and tools of public relations. So ये सब कुछ cases हैं जिसमें indirect topic involved है. And the last chapter and a very easy one at the same time, that is consumer protection. Importance of consumer protection from consumer's point of view and from business point of view. Then Consumer Protection Act 1986, कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हर साल कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से कुछ ना कुछ जरूर आता है, और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि चॉइस में दोनों ही आ जाता है. सो यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स. ओके, देन रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय कंज्यूमर्स. देन Who is a consumer according to Consumer Protection Act 1986? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. ये 1 मार्क का नहीं, 3 मार्क्स के लिए है. बिकॉज एक जनरल टर्म तो कंज्यूमर की सब जानते हैं, बट एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन हो सकता है, इसका एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है. यू शुड गो थ्रू. देन redressal agencies under Consumer Protection Act 1986 लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है एंड नेशनल कमीशन है. बट इसमें आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है उसकी मीनिंग के साथ. कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमाउंट ऑफ कंप्लेंट, देख सकते हो आप सब में मैंने ये लिखा हुआ कॉमन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमाउंट ऑफ कंप्लेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने मेल मेंबर्स होते हैं, कितने फीमेल मेंबर्स होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन कैसे होता है, क्या डिसाइड होता है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा. एंड अमाउंट ऑफ कंप्लेंट मतलब कितने रुपए तक के क्लेम को उसमें सेटल किया जाता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट. तो जिससे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं. देन रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज. सो these are the important topics of all the chapters of your business studies. हो सकता है आप लोग का हो कि सर इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं, बट बिलीव मी कि मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिए हैं. एंड ऑल्सो बिलीव दैट कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू guess the topics in business studies because it is a theoretical chapter. Any topic can come in examination, but still मैंने बहुत सारी कोशिशों के साथ, एनालिसिस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जो इस वीडियो में पूरे रखे थे. सो इस वीडियो में दिए गए सभी टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करें सो दैट यू शुड गेन अ वेरी हैंडसम मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. Keep your preparation up to the highest level, and God bless you. Thank you. Bye bye.